નમસ્કાર દોસ્તો, વિડીયોમાં ફરી એક વખત તમારું સ્વાગત કરું છું। હસવું આવે જે રીતે અત્યારે વિરોધ પ્રદર્શન થઈ રહ્યા છે, જે રીતે સ્ટુડન્ટો અત્યારે નરેન્દ્રભાઈ મોદીનો અને ભારતીય જનતા પાર્ટીનો વિરોધ કરી રહ્યા છે, ત્યારે આપણને હસવું આવે કે હજુ તો આ માંડ 240 સીટો લાવીને ભારતીય જનતા પાર્ટીએ સરકાર બનાવી છે અને એ પણ સરકાર કેટલો સમય ચાલે એવું કંઈ નક્કી નથી। ત્યારે એક તરફ નીતિશ કુમાર ઝટકા ઉપર ઝટકા આપે છે। ન છૂટકે ચંદ્રબાબુ નાયડુએ જે શરતો રાખી એ શરતોને કબૂલ કરવી પડી છે નરેન્દ્રભાઈને। સાલું આપણને નવાઈ લાગે કે આજ સુધી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ પોતાનો એકલો જ ફોટો ખેંચાવરાયો છે। એના ફોટો ફ્રેમની અંદર કોઈ બીજો વ્યક્તિ આવે તો આ વ્યક્તિને એ પસંદ નહોતું। આટલું અભિમાન હતું, આટલું ઘમંડ હતું, એ અભિમાન એ ઘમંડ ચકનાચૂર થઈ ગયું છે આજે। ત્યારે નીતિશ કુમાર જે રીતે ઝટકા ઉપર ઝટકા આપી રહ્યા છે અને એક તરફ ચંદ્રબાબુ નાયડુ પોતાની એક પછી એક શરતો કબૂલ કરાવી રહ્યા છે, ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટી એટલી બોખલાઈ ગઈ છે કે એના રાજની અંદર કેવા કેવા કાંડ થઈ રહ્યા છે એ એમને પણ ખબર નથી। કેમ કે નરેન્દ્રભાઈ મોદીને ટેન્શન જ એટલું વધી ગયું છે। 18 કલાક કામ કરતા હતા, હવે તો મને એવું લાગે છે કે 24 કલાક કામ કરશે, કારણ કે આ તૂટેલી ફૂટેલી સરકાર કેટલો સમય ચાલે એ કંઈ નક્કી છે નહીં। પરંતુ અંધભક્તોને પણ હવે ખબર પડી ગઈ છે કે આ સરકારમાં હવે કંઈ લેવા જેવું છે નહીં। સોશિયલ મીડિયાની અંદર તમે જુઓ તો અંધભક્તો એકદમ આમ ગાયબ થઈ ગયા હોય, લુપ્ત થઈ ગયા હોય એવું લાગે છે। જે રીતે ચકલીઓ લુપ્ત થઈ ગઈ છે એવી જ રીતે આ ચકલાઓ લુપ્ત થઈ ગયા હોય ને એવું લાગે છે। ત્યારે જે રીતે જનતાએ નરેન્દ્રભાઈ મોદીની ધુલાઈ કરી છે આ નીટના પેપરને લઈને, ફરી એક વખત તમને હું બતાવું એ વિડીયો, જે રીતે નરેન્દ્રભાઈ મોદી ઉપર આકરા પ્રહારો કર્યા છે। મહિલાઓ ખૂબ ગુસ્સે થઈ છે, લોકોની અંદર ખૂબ રોષ છે। ત્યારે આવો આપણે જોઈએ એ વિડીયો। પરંતુ તમારી દોસ્તો એટલી તો જવાબદારી બને છે કે આ વિડીયો ગુજરાતના દરેક ખૂણે સુધી પહોંચવો પડે, કારણ કે સોશિયલ મીડિયા તમને આ વિડીયો ક્યારેય નહીં બતાવે, કારણ કે એ તો દલાલી કરવામાં મશગુલ છે। જે જગ્યાએ ભારતીય જનતા પાર્ટીનો વિરોધ થતો હોય એ વિડીયો એ તમને ક્યારેય નહીં બતાવે, પણ અમારી ચેનલમાં તમને એક વિડીયો જોવા મળશે। તો હું જે વિડીયો બતાવું છું દોસ્તો, એ વિડીયો બરાબર શાંતિથી જોજો અને પસંદ આવે ને તો खूब शेयर करजो। तुम्हें तमाम बहुजन समाज के लोग हैं और जो सामाजिक न्याय के लोग हैं, जो आप जैसे, वो भी इस बात का सरकार से जवाब मांग रहे हैं कि आपने अगर इसको वहाँ कुछ परिवर्तन करना था, ऊपर करना था, कोई रास्ता करना था, तो इस देश की जनता को बताना चाहिए था। आपने अगर नहीं बताया तो हमारे दिमाग में, हमारे जहन में एक बात है कि जो 26 अलीपुर पे आपने किया, जो जनपद पे आपने घिनौना काम किया, ये हमारे अंदर इस बात का 100% डर था कि कहीं ना कहीं आप स्टेचू को परमानेंट हटाना चाह रहे हो। तो इसीलिए जहाँ तमाम देश की महिलाएं हो, छात्र हो, छात्राएं हो, इस देश के मजदूर हो, किसान हो, बहन बेटियां, तमाम 14 अप्रैल को पार्लियामेंट पे आते थे और पार्लियामेंट पे आकर के दूर दराज जो गरीब गुरगे लोग थे, जो पार्लियामेंट तक नहीं आ जाते थे, उनको एक संदेश देते थे कि इस देश के अंदर वहाँ अगर आप जाओगे तो साग इस देश की पार्लियामेंट के अंदर जहाँ बड़े बड़े फैसले होते हैं और जो इस देश का सबसे बड़ा मंदिर है, वहाँ पे जाकर के आप एक बार अपने बच्चों को लेके जाइए। ये प्रेरणा स्रोत था हमारे लिए। तमाम महापुरुष, ज्योतिबा फूले वहाँ थे, गांधी वहाँ थे, अंबेडकर जी वहाँ थे, जो इस देश के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे बैरिस्टर। इतनी छुआछात, इतनी बेईमानी, इतनी मक्कारी इन बेईमानों ने करी है। आज हमारे बच्चे पढ़ लिख करके दिल्ली यूनिवर्सिटियों के अंदर, JNU के अंदर जब आने लगे हैं तो इनका पेट में गड़बड़ घोटाला होने लग गया है। इसी डर के मारे आगे ना बढ़े, इसीलिए ये साजिश की। बिल्कुल साजिश है। अगर उनको इस बात का थोड़ा सी शर्म लज्जा होती तो इस देश के अंदर अखबार है, मीडिया है, रोज उनके प्रवक्ता कुत्ते की तरह भोंकते हैं। मैं बिल्कुल जोर दे के इस बात को कह रहा हूँ, आए दिन कुछ ना कुछ वो उल्टा सीधा बोलते हैं। इस पार्लियामेंट के अंदर, नई पार्लियामेंट में कटवारे, बड़ुआरे, मुल्लारे ऐसे शब्दों का यूज करते हैं। क्या उनको इस बात का पता नहीं था देश की जनता क्या करेगी? बाबा साहब के स्टेचू को हटाना ये सबसे बड़ी गद्दारी थी और ये देश की जनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। आज तो एक छोटा सा टेलर है,
ये छोटा सा टेलर है। अगर इन्होंने समय रहते हुए आज के ज्ञापन पे एक्शन नहीं लिया तो आप देख लेना, वो 2012 जो रायसीना के ऊपर जनता गई थी, यही बहुजन समाज के लोग वहां पर इसकी छाती पर चढ़ जाएंगे। कह तो रहे हैं कि सुंदर बना रहे हैं ताकि लोग उनसे और प्रेरणा ले, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। सुंदर तो हमने कहा ना, जो सुंदर बनाई है उसको भगवाधारी बनाना चाह रहे हैं। ये वहाँ पे अंधविश्वास पाखंडवाद फैलाना चाह रहे हैं। हमने सुंदर कॉलेज चाहिए, सुंदर यूनिवर्सिटी चाहिए छात्रों को पढ़ने। ये देखिए ना, बराबर में छात्र बैठे हैं। अरे एग्जाम हुआ और आप एक बार भी नई पार्लियामेंट में नहीं बोल सकते, आप बयान नहीं दे सकते। इसका सीधा मतलब है आपके दिल में दिमाग में काला है। और ये इस लोकसभा चुनाव के अंदर जनता ने बता भी दिया। अगर जल्द सद्बुद्धि नहीं आई तो इनका इलाज करने के लिए हमारे पैरों में जूते हैं, हम इस्तेमाल करेंगे आरएसएस और बीजेपी को चैलेंज के साथ। उनके भगवान तो चौराहे पे दिखाई दे रहे हैं और जो हमारे सनातन संस्कृति के महापुरुष हैं उनको बंद किया जा रहा है। तो बाबा साहब का स्टैचू वहाँ लगना चाहिए। वो समाज को एक दिशा देता है। संसद के अंदर बैठने वाले लोगों को एक इशारा है कि आप लोग इस संसद के अंदर बैठे हैं, चुन के आए हैं। तो इस देश के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे बैरिस्टर इतनी छुआछात, इतनी बेईमानी, इतनी मक्कारी इन बेईमानों ने करी है। आज हमारे बच्चे पढ़ लिख करके दिल्ली यूनिवर्सिटियों के अंदर, जेएनयू के अंदर जब आने लगे हैं तो इनका पेट में गड़बड़ घोटाला होने लग गया है। इसी डर के मारे बहुजन आगे ना बढ़े, इसीलिए ये साजिश की। बिल्कुल साजिश है। अगर उनको इस बात का थोड़ा सी शर्म लज्जा होती तो इस देश के अंदर अखबार है, मीडिया है, रोज उनके प्रवक्ता कुत्ते की तरह भौंकते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जंतर मंतर पे। आप देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ लोग मौजूद हैं। जिस तरह बाबा साहब की जो प्रतिमा है संसद भवन से हटा करके उसे पीछे स्थापित कर दिया गया, उसको लेकर नाराजगी है बहुजन समाज के लोगों में। और हम यहाँ लोगों से बातचीत करेंगे। सर, अपना नाम बताएं। मेरा नाम अशोक सागर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष समता सैनिक दल, जो डॉक्टर अम्बेडकर भवन यहाँ से रोड से संचालित है। बाबा साहब का स्थापित किया हुआ संगठन है 1924 का। सरकार को क्या कुछ कहना चाहेंगे जो उन्होंने बाबा साहब की प्रतिमा है वो पीछे लगा दी? हाँ, सरकार को यही कहने के लिए आए हैं कि जो डिसीजन जब देश के अंदर 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा था, सरकार थी भी नहीं उस समय, लेकिन अधिकारियों ने ना जाने किस साजिश के तहत 4 तारीख को मतगणना होनी थी, 3 तारीख को 3 जून को ये प्रतिमाएं हटा दी गई। इसका मतलब षड्यंत्र या तो अधिकारियों ने किया है। तो सरकार को यही चेताने के लिए आए हैं कि बाबा साहब की प्रतिमा से पहले कोई प्रतिमा उस परिसर में नहीं थी। लेकिन सरकार की तरफ से साफ तौर पे कहा जा रहा है कि सौंदर्यीकरण के नाम पे बाबा साहब के स्थानों पर सौंदर्यीकरण क्यों किया जा रहा है? दीक्षा भूमि में भी वहाँ पर सौंदर्यीकरण करके पार्क में पार्किंग बनाई जा रही है। यहाँ भी बताया जा रहा है कि पार्किंग बनाई जाएगी उसे हटाने के बाद, क्योंकि बाबा साहब की प्रतिमा उनके यथास्थान पर हो, पार्किंग का स्तर कहीं और देखें। हमारी डिमांड ये है कि अन्य महापुरुषों का जो स्थल चेंज किया गया है वो ठीक है, सौंदर्य करा गया, लेकिन बाबा साहब की प्रतिमा पूरे भारत के शोषित पीड़ित सभी लोगों को एक संदेश देती है। जो प्रतिमा बनाई गई है, उंगली का इशारा, सब बगल में भारत का संविधान, इसलिए उसकी महत्ता है। इसलिए उस महत्ता को लौटाने के लिए हम सब लोग ये आंदोलन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। सरकार को चेताने के लिए आए हैं कि उनकी प्रतिमा, उनके मूल स्वरूप और उनकी फाउंडेशन जिस स्थान पर थी, ऊंचाई पर थी, उसी ऊंचाई के साथ वो मूल प्रतिमा वहीं लगनी चाहिए। आपने देखा होगा अभी जैसे अखबार में फोटो आ रहे हैं कि उनके फाउंडेशन को भी कम कर दिया गया है, यानी कि उनके जो स्थान को कम करके उनको कम आंका जा रहा है। ये तो यहाँ की परंपरा रही है। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो यहाँ की वर्णवादी व्यवस्था है, पहले बुद्ध के साथ भी यही किया है कि बुद्ध की प्रतिमा जहाँ निकली उनको वहाँ स्थापित नहीं किया, संग्रहालय में लगा दिया, एक जगह शिक्षित कर दिया। भाई आम चीज़ें तो हर जगह दिखाई, चौराहे पे दिखाई देनी चाहिए ना। उनके भगवान तो चौराहे पे दिखाई दे रहे, और जो हमारे सनातन संस्कृति के महापुरुष हैं उनको बंद किया जा रहा है। तो बाबा साहब का स्टैचू वहाँ लगना चाहिए। वो समाज को एक दिशा देता है। संसद के अंदर बैठने वाले लोगों को एक इशारा है कि आप लोग इस संसद के अंदर बैठे हैं, चुन के आए हैं, 20-20 लाख की कर्फ्यू से चुन के आए हैं। ईमानदारी से इस भारत का संविधान जो मैंने बगल में ले रखा है, जो बहुत मेहनत से बनाया है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में, आप इसके अनुसार शासन सत्ता को चलाएं। और हमारे 131 सांसद जो SC ST के हैं इसके अंदर हैं, अलग अलग पार्टियों में हैं। हमारा उनके लिए भी वो है कि अभी सत्र चल रहा है 24 तारीख से 3 जुलाई तक चलेगा। उन सबको कहा जाएगा कि आप लोग इस आंदोलन को सरकार तक पहुंचाएं। बाबा साहब की प्रति एक भी सांसद या फिर MLA हो, कोई खुलकर सामने नहीं आए। बोलेगा जब उनका घेराव किया जाएगा ना, तमाम लोग घर किया जाएगा, उन्हें घर से बाहर नहीं आने दिया जाएगा, वहीं पर रोका जाएगा।
संसद तक नहीं आने दिया जाएगा उनको। तो उनकी मजबूरी है, सरकार को कहेंगे कि आप बाबा साहब की प्रतिमा वहीं लगा दो जहाँ पर लगी हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल। वो आगे भाई साहब के हाथ में मैं दिखाना चाहूंगी, भारत का संविधान हाथ में है। बिल्कुल, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ये संविधान बाबा साहब के है कि इस पे अगर किसी ने आंच डाली है, बीजेपी हो चाहे कोई भी सरकार, उसको जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। जब तक बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लग जाएगी, जब तक इसी तरह कारवां चलता रहेगा। आगे का एक्शन प्लान क्या रहने वाला है? एक्शन ये है कि जब तक बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लग जाएगी, इसी तरह कारवां चलता रहेगा। जंतर मंतर हर बार यहीं पर प्रदर्शन होगा, यहीं पर बैठा हो जाएगा। बिल्कुल, आप बताएं क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या आगे का क्या रणनीति रहने वाली है? आगे की रणनीति यही रहेगी कि संघर्ष करते रहेंगे। बस संघर्ष जितना करेंगे उतना ही हमारी सुनी जाएगी। अगर हम लोग एकजुट नहीं हो पाए ना और अपनी आवाज़ हम बुलंद नहीं कर पाएंगे तो हमारी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। आवाज़ तो पहुँच जाती है, लेकिन जोर से चिल्लाना पड़ता है, तब मोदी जी को सुनाई देता है और सरकार को सुनाई देता है। सरकार की तरफ से साफ तौर पे कहना है कि सौंदर्यीकरण के नाम पे उन्होंने उनकी प्रतिमा जो हटाई गई है ताकि लोग उनसे और प्रेरणा ले सके। देखिए, सौदीकरण की जरूरत नहीं है। बाबा साहब की स्टैचू को और बड़ी करनी थी। जो नया पार्लियामेंट मिला है वहाँ पे लगा देते और वो इसी पार्लियामेंट में पुरानी जगह दूसरी जगह लगा दिए। इसका इस सौदीकरण से क्या मतलब है? आखिर बाबा साहब की पहले भी प्रतिमा थी, वहीं पे अच्छा से और व्यवस्था बना देते और जगह बना देते। ये सौदीकरण होता है कि उठा के कहीं और लगा देना, ये सौदीकरण नहीं है। ये भी है जी, पुरानी में तो है ही वो लगी हुई, लेकिन नई संसद भवन में हमने 2 फरवरी 2023 में 2 फरवरी में भी ज्ञापन दिया हुआ है। लोकसभा में उसकी कार्रवाई भी चली गई, लेकिन अभी तक वहाँ प्रतिमा लगी नहीं है। नई संसद में भी आप मांग कर रहे हैं, नई संसद में भी मांग कर रहे हैं कि बाबा साहब की प्रतिमा लगे, तो क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, कहना कुहाना कुछ नहीं है। मोटी मोटी बात है कि आपने चोरों की तरीके से तमाम महापुरुषों की स्टेचू को किस लिए हटाया? पूरी जो जनता है। તો આ વિડીયોને શેર કરવામાં જરા પણ કચાશ નહીં કરતા. ખબર પડવી જોઈએ લોકોને કે દિલ્હીની સડકો ઉપર શું ચાલી રહ્યું છે. કારણ કે ગુજરાતની અંદર જે જનતા છે એ તો ભક્તિમાં લિંગ છે, બરાબર કે નહીં? વિડીયો ખૂબ શેર કરો. આવા જ વિડીયો જોવા માટે અમારી YouTube ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન પ્રેસ કરી દેજો. જય હિન્દ.